Assalamu alaikum everyone. This is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. एक टॉपिक है जिस पे हम यूजुअली बात करने से कतराते हैं क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का मसला है। कहते हैं कि लड़कियों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और उसी पे उनकी शादी हो जानी चाहिए वरना बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। सही है, लेकिन क्या लड़कियों के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि दे मैरी व्हेन दे वांट टू? आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि she took a bold move and she chose to get married at the age of 39. And she is a wonderful mom and she has been working in the industry for past 20 plus years. Yes, she is Miss Sara Sohail Khan. Assalamu alaikum, Sara. Assalamu alaikum. I think my husband would mind the Miss Sara Sohail Khan. It's Mrs. Sara Sohail Khan. Oh, yes. I'm so sorry, my bad. No. Just a little bit of Mrs. humor. Sara Sohail Khan, please आप mind नहीं कीजिएगा, I corrected. Just a little humor. I know. कैसी है सारा? बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले तो because I've been a podcaster myself, Wow. the chirpiness and the liveliness and the attention to detail that I've been noticing while you have been setting up, you've connected with me is so amazing. Thank you so much. I would honestly, from the depth of my heart, wish that you go places, and I have no doubt that you won't. You will. Thank you so much, Sara. Means a lot. Thank you for taking time. I know बहुत मुश्किल होता है वक्त निकालना, लेकिन आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for having me. It's a pleasure myself. It's also our girl time that we are having together. So Yes, since it's a exactly. Sunday, I'm enjoying that. So yeah, good one there. Same here. अच्छा सारा, मुझे बताएं, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि आप माशाल्लाह 20 प्लस ईयर्स से काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, वो भी मीडिया इंडस्ट्री में, राइट? हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू टू वर्क इन मीडिया इंडस्ट्री? So I started my career with an advertising agency, and I worked as an account executive first. Okay. Then क्योंकि बचपन में मैं because मेरी फैमिली रेडियो बिजनेस में थी, तो मैं एक रेडियो जॉकी थी. मैंने एक चिल्ड्रंस शो शुरू किया था. I think I was the first one who started it. It was by the name of Kitty Teen Zone when you only had 2 FM channels in the country. वो मैंने बच्चों के लिए और टॉडलर्स के लिए, so by affinity with the kids segment, right? So it was one of its kind show where we targeted children and toddlers and then the teens also in one segment. वो 3 घंटे का एक स्लॉट होता था और उसके अंदर हम स्टोरी टेलिंग भी करते थे, एक्टिविटीज भी करते थे, बच्चे, माँ बाप, पेरेंटिंग, ऑल ऑफ दैट. सो वो एक मैं उसको होस्ट करती थी और मैं बहुत छोटी थी at that time, like maybe probably I should be about How 16 or 17. 16 or 17 if I remember. Yeah, 16 and 17 इन्हीं कुछ years की बात है. So मेरी जो initial training हुई, obviously because of a media family background from my Nanehal side, my father is totally different. He's engineer, building, everything very different, all technical stuff. So no art there. Yeah. So my mother's side is all art, media, art expression, and I think I got my genes more from them and intellect more from my dad's side. So मैं मीडिया को बहुत enjoy करती थी. रेडियो को टेक्निकली मैंने बहुत स्टडी किया, जिसमें यहाँ तक कि मेरी ट्रेनिंग इस लेवल तक हुई है कि कौन सा तार, कौन सा जैक मिक्सर में, हमारे पास उस टाइम पे एनालॉग मिक्सर्स होते थे, अब तो आपके पास टर्न टेबल्स होती है ना, हमारे पास 32 चैनल मिक्सर्स होते थे जो एनालॉग होते थे. तो कौन सा जैक कितने mm का कहाँ जाएगा, विनैप से हम अपने गाने चला रहे होते थे. अभी भी कुछ रेडियो स्टेशंस में, बिकॉज I was doing my shows up until before marriage, extremely before marriage. My husband doesn't know that side of me. It's like, ये तुम ये भी करती थी, ये वो. तो उसमें मुझे वो इंट्रीग पैदा हुआ कि I want to learn how transmission ऊपर कैसे जाती है, फिर उसमें हम कंटेंट कैसे डालते हैं, कंटेंट में एड्स कैसे होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, पॉलिसीज क्या होती है, गाइडलाइंस क्या होती है. तो बहुत शुरू में मेरी वो ट्रेनिंग स्टार्ट. Sara, you told me that your mom's side is more towards art और father से जो इंटेलेक्ट आया that's from your father. And then जब आपके हस्बैंड के साथ आप बैठते हो तो कितनी नई चीज़ें भी वो एक्सप्लोर करते होंगे आपके बारे में, राइट? Right, explore to nahi. I think he's more like he gets a shock of his life every day. Oh my God. He's a very simple person. So my husband's totally from retail, so he has nothing to do with media. So there's my father who's technical, father technical, then my husband comes into retail, and then my Nanehal all art and media. So we've got like a combination of all of it. But the good part that happened was जो मुझे इन सब से relate करने में आसानी हुई कि मेरा जो
जैसे मैंने आपको बताया हम्म। कि मेरा जो इनिशियल मीडिया की ट्रेनिंग थी उसके अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग थी। सो कंटेंट कैसे बनता है, नैरेटिव कैसे होता है, हाँ। सेल कैसे होती है, प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करना अच्छा। है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, हर चीज़ का फंक्शन। सो बहुत ही अर्ली एज पे मुझे वो चीज़ें सिखाई गई। राइट राइट राइट। सो मैं फिर इनकी ज़िंदगियों का जो थोड़ा-थोड़ा बेटर, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ रिटेल क्लाइंट्स दैट आई डील विद, ओके। सो आई नो हाउ टू डील विद माय हस्बैंड, बट ऑब्वियसली नॉट 100% गुड ऑफ वन। हिज आई नो बिज़नेस हाउ एंड टू डील विद माइंडसेट माय हस्बैंड। professionally. या। So and then also technical because I have a lot of construction clients. So क्योंकि घर से मुझे कंस्ट्रक्शन हाँ। की थोड़ी सी पता है कि वो किस तरह से सोचते हैं, तो मुझे ये भी हेल्प मिल जाती सही। है। हाँ। प्लस ये कि बिकॉज आई नो my husband, I also know on the other side, I also know how to deal with a lot of people like my husband from that industry because I'm getting that training at home. He's यस telling me यस कि देखो यस। ये करो वो करो. हाँ। And then obviously from my mamu and from my Nanyal side, my cousins, they're all into content, so I observe them very राइट closely. तो वो मेरी लर्निंग होती है. तो राइट। चैलेंजेस, जब ऑब्वियसली आप मीडिया फैमिली से होते हो ना, हाँ। चैलेंजेस आपको ये आते हैं. सबसे बड़ी चैलेंज तो ये आता है जो आजकल बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है कि नेपोटिज्म, जो ये आप तो यस। मीडिया फैमिली से आ रही हैं, आप ये कर रही हैं. मुझे ये एज था कि क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मीडिया में नहीं थी, इतने 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 सेगमेंट्स थे ना, हाँ। ये वाले ये, तो मुझ पे कोई नेपोटिज्म का तो हाथ रख नहीं ट्रू। सका. फिर आप जब रेडियो कर रहे होते हैं ना, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ। इफ यू गुड एट योर वर्क, that's the only reason why you'll get noticed. एब्सोल्युटली। जो आपने बात कही ना, जब ये जो नेपोटिज्म की बात होती है, मैं सोचती हूँ अगर लोगों को काम ही पसंद नहीं आ रहा, वो देखेंगे ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल. जब वो नहीं देखेंगे तो चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, कुछ भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दे विल, इफ द ऑडियंस इज नॉट एक्सेप्टिंग, नेपोटिज्म चल ही नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं चल सकता. आप देखिए कितने पॉडकास्ट आजकल हो हाँ। रहे हैं. मतलब you started fairly new, यस, but वेरी न्यू। you've made a mark for yourself that people are noticing you. I noticed you. So many people are doing, यस। very good people are doing podcasts, but ट्रू। जो नोटेबिलिटी वाला फैक्टर हो रहा है, जो रिकॉल वाला फैक्टर हो रहा है, वो हर किसी का इसलिए नहीं हो सकता कि ये काम होता है एक्सप्रेशन का, ये काम होता है नैरेटिव का, ये काम होता है स्किल्स का. ट्रू। अब वो अल्लाह की तरफ से होती है. अब वो कहते हैं कि इश्क और आर्ट, इसका ना ओहो कोई नाप डीप। नहीं सकता. सही इसको बात आप है। नाप नहीं सकते, सबका अलग है. अब आप इश्क अपने मजहब से भी करते हैं, इश्क अपने महबूब से भी करते हैं, हाँ। इश्क अपने काम से भी करते हैं. तो आप उस पे पैरामीटर नहीं लगा सकते कि यार ये अपने बच्चे से, अपने मियाँ से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता है, वो उसका रिलेशनशिप ये है. ट्रू। सबकी अपनी अपनी रिलेटिविटी है. वही आर्ट के साथ है. हाँ। आर्ट को मेजर नहीं किया नहीं जा किया जा सकता. सकता। हाँ, कुछ सेगमेंट्स को आपका एक्सप्रेशन अच्छा लगेगा, कुछ को दूसरे का सही एक्सप्रेशन. बात है। टू हाँ। ईच हिज ओन. वो नमक, हर किसी के नमक और मिर्च जो है ना, वो स्वाद अनुसार। डिफरेंट है, स्वाद अनुसार. एग्जैक्टली आई एग्जैक्टली नो। ऐसे ही है. अच्छा सारा, ये बताएं कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में ना एक चीज़ है, एक सोसाइटल प्रेशर होता है। कहते हैं कि लड़कियों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसमें शादी हो जाए तो सही है, राइट टाइम राइट टाइम राइट टाइम, वी बिल्कुल सही ऑल है. हैव बीन हियरिंग दिस। या गलत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को इस तरह से इतना बड़ा बना देना कि उनको प्रेशर करना दैट दे आर नॉट गिवन अ चांस टू परस्यू देयर ओन ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। वहाँ पे आपने अपने एम्बिशन को प्रायोरिटी दी, ठीक है? और जब आपको लगा दिस इज द राइट टाइम, now I'm ready to settle, which was at the age of 39. How did it happen? Did the society not affect you? सो व्हाट इज सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ। और ये आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट मैं इतना ओपनली इन चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ. मुझे टैबूज वगैरह जो है ना, वैसे भी मैं उनसे काफी आई दूर आई भागती नोन है। फॉर द नो फिल्टर job, but obviously now हम्म। that I'm a mother of 2 daughters, I try maintaining a filter. But society is a mixture of you and me, right? People who are thinking. Now हमारे साथ मसला ये है because we live in Pakistan. हमारी एक सब कॉन्टिनेंट मीडिया एक्सपोजर, अगेन मीडिया कम्स इन, एक नैरेटिव है जो हम फिल्मों से और सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट रीजन्स की फिल्मों से हमने देखा है. लड़की की जल्दी शादी हो जाए, वो बच्चे पैदा कर रही है, वो ये कर रही है, सफाइयाँ कर रही है, हाँ। मर्द भी देख रही है, औरत भी देख रही है, सास भी देख रही है, माँ भी देख रही है,
बाप भी देख रही है सारी चीजें, और वो जो चीजें हम देखते हुए आए हैं उसको हमने एक नॉर्म बना लिया है कि भाई ये हमारा नैरेटिव है। ये नैरेटिव एक्चुअली आपको मीडिया ही फीड कर रहा है। ये मीडिया क्या होता है? मीडिया सही इज एन बात है। आउटलेट जहाँ से फिल्म इज अ मीडिया, हम्म मीडियम मीडिया, गाना इज अ मीडिया, हम्म लिखी हुई शायरी इज अ मीडिया। ये तो सालों से हो रहा है ना। तो सही। अब वो जो चीजें आपका एक्सपोजर है, इसलिए मैंने कहा ये हाँ सही है, क्योंकि देखिए एक्सपोजर ही वो बन गया है ना। ट्रू। मैं जो पैदा हो रही हूँ, मेरी पेरेंट्स के टाइम का जो मीडिया है, जो मैं देखते हुए बचपन में जो चैनल देखते हुए बड़ी हुई हूँ, वो चीजें जो मैं देख रही हूँ, मुझे दिमाग में वही है कि हाँ भाई जल्दी शादी हो जानी ट्रू। चाहिए, बायोलॉजिकल क्लॉक है, मेडिकली है, चीजें हैं। मगर then my kids who will be born who are born now and जो आगे जा रहे हैं, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया से एक्सपोज्ड है, इंफॉर्मेशन से। एब्सोल्युटली। आप उनके सामने ये कह ही नहीं सकती है कि भाई ये आपने ये करना है, ये आपने ये करना है, ये आपने ये करना है। शादी एक बहुत अच्छी चीज है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन फ्रॉम नॉट मैरिंग, आई टेल यू हाउ थिंग्स, बट वो जो कहते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दोनों साइड का ग्रीन जो है ना वो लगभग सेम ग्रीन है। मैं बता रही हूँ, मैं सालों साल मुझ पे सोसाइटल प्रेशर रहा। सही बात है। जब मैंने शादी की तो मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड ने भी, ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मेल, एंड आई मीन वी हैड आवर इश्यूज व्हेन वी गॉट मैरिड, क्योंकि हम दोनों लेट शादी हुई थी। तो पहले साल तो हमारा पानीपत की बैटल थी। अच्छा। और उसके बाद भी अंडरस्टूड कि यार इसके आगे कुछ है ही नहीं, यही शादी है। एंड वी लाइक अरे खत्म हो गई, यही था। So how शादी की long थी। you have been dating him? But you were guys were together? No, we got married. So I met him, I think, for 15 minutes. Oh my God. We had, and 15 minutes we had a very commercial chat where, you know, I was selling media, so he was in a retail and retail industry, and I thought कि यार अगर शादी वादी नहीं हुई कोई बात नहीं, सच्ची बातचीत हो रही है, क्लाइंट तो मिल जाएगा, आपने मेरी product कैंपेन आ सही जाएगी। sale हाँ किया। वो सही, मैं बैठी भी, अच्छा वो भी यही सोच रहा कि अच्छा ये मीडिया में है तो चलो कुछ नहीं, तो वी establish a rapport, and वो हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, True. बट यू नो वी आई मीन 40s में, लेट 30s 40s में इतना हम सोचते नहीं। अब चीजों के बारे में प्रैक्टिकल हो जाते हैं प्रैक्टिकल हो ज्यादा। जाते हैं लोग। वी आर नॉट थिंकिंग कि आप हमें क्या जज कर रहे हो। देखिए हमारी पूरी जिंदगी जजमेंट में सही गुजर गई बात ना, है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमें क्या जज कर रहा है, यानी हमारी हड्डियां जो है ना वो टक टक करती हैं जब हम हमें लिमिटेड अब आवर्स कोई होते क्या हैं। ही जज करेगा, क्या जो ही भी है जज यही करेगा। है। हाँ, इवन हमारे माँ बाप इज लाइक नाउ अच्छा भाई यही है, हो गया जितने I जो है know. यही है, तो कर लिया, बहुत कुछ हाँ कर लिया इन लोगों ने जो लोग नहीं true करते true. नॉर्मली। सो हम बैठे हुए वही हमारे दिमाग में था, और दोनों मतलब मैं आई मीन एवरीबडी गेट्स इनटू रिलेशनशिप्स। I've had my share of relationships. I Yeah. don't have any shame on that. He's had his share of relationships, I'm sure. And so we've gotten close to the institute of marriage, but it wasn't, it says कि जो हम सेल्स की लैंग्वेज में कहते हैं जब डील होनी होती है ना तब वो क्लोज हो जाती है, Yes, सारी when चीजें it's मिलनी होती है ना, वो आप written. कोशिश अगर आप फोर्स करोगे ना एक डील को, वो हो भी जाएगी, खराब हो जाएगी। ये तो सारा जिंदगी का उसूल है। अगर कोई चीज हाँ होनी है ना, वो इतनी स्मूथली हो जाएगी कि आपको हाँ ये भी पता नहीं हाँ, चलेगा कि इसके रास्ते कहाँ से बने। एंड इफ कहाँ से, समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, देन वो ऐसे ऐसे हर्डल्स आ जाएंगे हाँ। दैट विल बिकम सो डिफिकल्ट टू परस्यू। एक और बात है इसके अंदर, एक एक बड़ा जी। टेक्निकल क्वेश्चन है, यू नो, बड़ा हाँ मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव हाँ रियलिटी है। वो ये है कि देखिए जब हम ना एज सेल्स पीपल, मैं जिंदगी को सेल्स की तरह ही व्यू करती हूँ, सेल्स एंड प्रोडक्ट, मीडिया, नैरेटिव, एक्सप्रेशन। जब हम कोई चीज बेचने जाते हैं ना तो हम सेल्स वालों से गलती तब होती है जब हमसे चीजें नहीं बिक रही होती हैं, जब हम सोल्यूशन नहीं बेच रहे होते। हर बंदा, हाँ, हर इंसान दुनिया में वो एक आसानी चाहता है, वो एक आसानी चाहता सोल्यूशन है। के लिए आया है आपके पास, ठीक है। अगर आप उसको काम करने का तरीका सिखाओगे तो वो कहेगा वो तो मुझे आता है, इसका हल बताओ। हल बताओ। सही है। जिंदगी जब आप दो लोग साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, वो भी तब जाके वहां बैठते हैं जब कहते हैं अच्छा हल बताओ। वेरी ट्रू। तो वो हल जब आपका हल और दूसरे का हल एक साथ हल हो एक साथ जाता हल है। जो हो जाता है ना, तब आप कहते हैं यार मजा आ रहा है, चलो कर लो कोई चीज। आयशा मैं आपको बता रही हूँ, वी हैव एन एज डिफरेंस ना, ये मेरी तरफ से आप समझ लें आपके लिए गिफ्ट हो गया, क्योंकि ये मुझसे बड़े यस लोग जो है ना उन्होंने बिल्कुल मुझे दिया है। जी। एंड आई नो वंडरफुल वुमेन हु गॉट मैरिड एट 50 55 एंड दोस वर माय इंस्पिरेशन। जब मैं उनके साथ बैठती थी, एंड दे हैड, आई नो पीपल हु हैड चिल्ड्रन एट 40, तो वो यही कहते थे देखो परफेक्ट नहीं है आप में बहुत बुराइयां हैं। आप माँ बाप के साथ भी रहती हो ना, भाई बहन के साथ भी रहती हो ना, फ्रेंड्स भी है ना, इसी तरीके से आपका पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है, True. उसमें भी बहुत बुराई है। लेकिन जो आपका इम्परफेक्ट है ना, उसके साथ जोड़ के चीजें कोई हल करना, परफेक्ट हो जाए। हाँ परफेक्ट कुछ नहीं होगा, सही। परफेक्ट नहीं होगा, हाँ ठीक है। एवरी डे
इज गोइंग टू Yes. बी इम्परफेक्ट, बट चीजें हल होने लगी वो हाँ, इम्परफेक्टली, आपको उन इम्परफेक्शंस में चीजें अच्छी लगने लगी, ये आप आसान कहेंगे लगने कि लगे। हाँ ये आसान है, लेकिन हम्म। इट्स गोइंग टू बी हार्ड वर्क. Yes, It's obviously. going to be hard work every day, and that is when you know that you want to get married. And marriage is very beautiful क्योंकि एक से भले दो, हाँ, जब आप सिनेमा जाके, मुझे सोलो मूवीज देखने का बहुत शौक है. माय हस्बैंड डजंट अंडरस्टैंड कि अकेले जाके थिएटर में बैठ जाती है, बैठ के पूरी मूवी देख के आती है, कहती है भाई नहीं चला करो. हाँ. इसको हमेशा से ये आदत है, ये कैसे है इसके अंदर. लेकिन ये मैं आज पब्लिकली ये बात बता रही हूँ, जब मैं उसके साथ बैठ के एक मूवी देख रही होती हूँ, जो कि मैं पूरी नहीं देखती हूँ, कि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इवन नेटफ्लिक्स पे मैं नहीं देख पाती. सही है, नेटफ्लिक्स इज गेटिंग फ्री प्रमोशन, आई मीन यू शुड पे मी फॉर ओटीटी नेटफ्लिक्स. सो मैं जो हूँ तकिए के पीछे ना मुंह करके सबटाइटल सुन रही होती हूँ. उसको मेरी आदत पता है कि ये सुन रही होगी, कंटेंट पूरा अब्सॉर्ब कर रही होगी, लेकिन हम दोनों बैठ के ये रात में बच्चे सुला के हम देख रहे होंगे. जो मजा मुझे उसके साथ मुंह दूसरी तरफ करके कान से सुनने में आता है, वो कोई सिनेमा स्कोप आज तक मैंने किसी के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजारा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं. श्योर. अच्छा सारा, जैसे आप अपनी स्टोरीज बता रही है ना, तो हाँ. मुझे यही लगता है कि जिंदगी में सही इंसान का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हाँ. अपना बोझ ये एक तरह से अपने आप को आप संभाल सकते हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स जुड़ जाए जो कि टॉक्सिक हो, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप किसी और का बोझ, वो मेंटल प्रेशर नहीं ले सकते. अच्छा, इस तो पे भी बड़ा तजाद है, ये भी मैं आपको जरूरी है बताती कि हूँ. सही इंसान नहीं हो जिंदगी में. देखिए सही कोई नहीं है. हाँ. मैं कभी आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हूँ, आप हाँ. कभी मेरे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं. जो चीज है ना, आपके दिमाग का सही होना बहुत जरूरी है. ठीक है ना, ये 100 बातों की एक बात है. अच्छा मसला ये होता है, ये जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, आई मीन आई एम नो expert on a relationship. I think I'm the worst person to suggest somebody anything on a relationship. But what I've learned from my life is people क्या होता है कि हम अपने आप को नहीं जानते. ये हमारे साथ गलती हो रही होती है. हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को डिस्कवर नहीं करते, हमें ये इन रियलिटीज का अंदाजा ही नहीं होता कि व्हाट विल वर्क फॉर अस, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी शुड एक्सेप्ट. ठीक है, ये इन चीजों का हम अपने आप में अजाला नहीं करते. सही. मैं अपने आप को इसका गिल्टी मानती हूँ. फॉर मेनी इयर्स आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड एंड I would expect people to give me what I wanted. Okay. Because जो मेरे अंदर कमियां थी, किसी के अंदर वो ज्यादती थी. तो मैं हर किसी की good part, I mean not that even friends में and work में हर किसी की अच्छी चीजें लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हम नहीं ले सकते. आप सबका अच्छा लेके परफेक्ट नहीं बन सकते. वो एनिमी होती है, सही ना, जो एनिमी एनिमेशंस होती है ना, ये वो होता है. जापानीज एनिमी आपके साथ बन जाती है. आई होप दैट वी कॉल इट एनिमी, क्योंकि मेरी जो नीसेस है वो मुझ पर हंसती है. योलो जो इनका जो ये लिंगो होता है ना, जेंजी लिंगो जो होती है, उसमें वो कहती है फुप्पो यू डोंट नो दिस, फुप्पो दिस इज हाउ इट्स डन. एंड आई एम लाइक ओके आई एम सॉरी, कैन यू जस्ट टेल मी, एंड देन आई गेट दोस वर्ड्स. सो वो लिंगो में कभी मैं प्रोनाउंसिएशन हो सकता है एक आध वर्ड मेरा गलत हो, but so if my niece is watching, I mean I wanted to embarrass you. Happy day. She's learning with you. I'm learning. So yeah, so हम हर किसी का ना परफेक्ट लेने की कोशिश करते हैं. It's not wrong to be a good person and to keep on changing yourself and keep on evolving, but you have to understand that एक चीज जिसके साथ आपको मुखलिस होना पड़ेगा ना, वो है आपकी रूह. आपकी रूह. ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए कि दिस इज व्हाट यू आर ऑल अबाउट, सो आपको पता होता है कि आपके साथ क्या चीज चल सकती है, क्या चीज नहीं चल सकती है. सही बात है. और देखिए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेशनशिप्स नहीं चले, उनकी डिवोर्सेस हो रही है, कोई गलत बात नहीं है. मैं आज बैठ के यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि एक रिलेशनशिप अगर आपके लिए टॉक्सिक हो गया है, क्योंकि द थिंग्स व्हिच the dynamics of that relationship is not working for what you want in a certain time or what your partner wants in a certain time, अगर आप उसको खत्म कर देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है. मगर अगर आपके साथ बच्चे इन्वॉल्व है या आपके साथ कोई बैगेज इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए बच्चे पैदा करना आपका डिसीजन है. बच्चे आपसे पूछ के नहीं आए. हाँ ठीक है, they were destined to be born through you, but having that generation was your decision. So what you do with that generation is also your decision, and you'll be held liable for it. अफेक्ट होते हैं ना, अगर कोई रिलेशनशिप में सेपरेशन है, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो बच्चे ही होते हैं. उनकी तो कोई गलती नहीं थी. उनकी कोई, अच्छा उसमें गलती और नॉन गलती की भी बात नहीं है, बिकॉज दीज आर चॉइसेस. और इसको भी बड़ा ओवररेट किया जाता है कि आप एक स्टिग्मा लगा देते हैं somebody is getting divorced कि
ये उसकी गलती है, उसके माँ बाप की गलती है, ये है. No, that is because of the media narrative that we get. You know what we've been exposed to, the films and the cinema and the storytelling and the script writing, वो बैठ गई है. So that you have to get a little past it, थोड़ा ऊपर. देखिए, आप जब शादी करते हैं ना, जब आपके बच्चे होते हैं, तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे अम्मा है, मेरे भाई है, मेरे हस्बैंड की मदर है, सिस्टर है, सब है. लेकिन जब आप शादी करते हैं ना, तो आप एक एक्सटेंशन वो होते हैं ना, ये मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट ग्रो कर रहा है ना, इसका जब एक शाख निकल जाती है, तो वो शाख आप कभी कभी तोड़ के एक पानी में भी डाल देते हो, वो एक अलग ये नेचर का एक नेचर का अलग है. तो आप साथ रहे, आप अलग अलग बहुत खुशी से साथ रहे. यानी कि आप अगर साथ भी रह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे जो जड़ निकली है, ये 2 बच्चे निकले, इनको आपको, या ये 3 बच्चे निकले, नर्चर करके अपनी फैमिली को रखना है. जब तक वो टॉक्सिक नहीं हो रही है, कोशिश करें कि वो टॉक्सिक ना हो. मेक इट वर्क. आप देखिए, सेल्स में हमारी डील्स आती है, हम इड़ी छोटी का जोर लगा देते हैं कि ये कैंपेन चलाते हैं ना, ये KPI आना, आपने इड़ी छोटी का जोर लगा दिया ना अपने ब्रांड को उठाने के लिए. आप अपने ब्रांड के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप अपनी सैलरी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी औलाद, आपका शौहर, आपकी बीवी, जो एक्चुअली आपके हैं. मैं इतनी कोई रिलीजियस मतलब 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब स्क्रिप्टेड रिलीजियस हूँ, मैं अच्छी मुसलमान हूँ, क्योंकि वहाँ सब अच्छा होगा तो फिर उसका इम्पैक्ट आता है. देखिए, बेसिक है ना, हमें मजहब ने सिखा दी ये बात कि आपका शौहर, आपकी बीवी आपका लिबास है. लिबास आपका साया है, आपका लिबास है, ये आपकी DNA है. ठीक है, शौहर आपका है, आप शौहर की है, ये आपकी कुल कायनात है. ठीक है ना, उसकी अच्छाई भी आपकी है, उसकी बुराई भी आपकी है, दोनों तरफ, औरत मर्द बच्चे सब. जिस वक्त आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, नहीं करते. शुरू की पहले साल मेरी शादी हुई थी, मैं नहीं एक्सेप्ट करती. आई वाज लाइक, आई एम सो सुपीरियर, आई एम सो बेटर देन दिस, आई कैन डू. मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ, मैं ये खुद करती हूँ, मैं 11 साल दुबई में रह के आई हूँ, मेरे पास क्या किस चीज की कमी है. मेरा दिमाग वो था, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट. बट it took me a while when I had my first daughter, and when I saw my husband nurturing my daughter, being the father, I fell in love. Like, I fell in love with the father of that child, not the man. वो मोहब्बत अलग होती है. ठीक है ना, तो अब सिर्फ उन दोनों का एक मोमेंट देखने के लिए कि when they're having their me moment, मैं शायद खिड़की से छुप के भी वो देखूंगी. वो जो मुझे खुशी मिलती है, उसके लिए मैं मतलब 100 अपने ईगो के घूंट पीऊं. बट प्लीज डोंट बिकम अ डोरमैट. अगेन, ये आपको बाउंड्री क्रॉस करनी है कि यू हैव टू नो योरसेल्फ आल्सो. आप एक औरत भी हैं. अच्छा सारा, विद ऑल दीज थिंग्स ना, हमारी बायोलॉजिकल साइकिल के साथ हार्मोनल साइकिल अटैच होती है. ठीक है, माशाल्लाह, यू गेव बर्थ टू योर फर्स्ट बेबी एट द एज ऑफ 40, राइट? अच्छा, अब बहुत सारी लड़कियों के लिए ये होता है ना कि मेडिकली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंसीव. In your case, when you were giving a birth to a baby at the age of 40, fear था कि कोई complications आ सकती हैं? So both my pregnancies were absolute scariest, advanced maternal age पे मैं थी अपनी, and both were C-sections with a general anesthesia, because I have had when I was very young, I had a spinal operation because of my, digital addiction and computer. So वो उसकी वजह से मेरा normal बच्चा नहीं हो सकता था, तो I had to go for a C-section and a general anesthesia, which I think is the best thing that happened with me, because I didn't have to go through the normal pains of labor which I saw in my family and friends and everything. अच्छा, मुझे यही डॉक्टर्स ने भी मुझे यही बोला था कि देखिए होता है, लेकिन मैंने यंग औरतों को भी देखा है, when people are 22 and 24 trying to conceive, के जिनकी complications आती हैं वो आ जाती हैं, जिनकी complications नहीं आती वो नहीं आती. But one thing my doctor told me कि mostly women, when they cross 39 till 45, till they hit their menopause, they're more fertile. So I conceived maybe 15 days after my marriage, and on my rukhsati, and I was on a business trip actually. क्योंकि 2 days after my shadi, I had gone after my rukhsati, I had gone to a business trip. मेरे लाहौर इस्लामाबाद में कुछ meetings थी, and then my husband and me, we just hung out on the weekend, and when I came back,
I was expecting, and I was like, oh, were you shocked? I was shocked because I'll tell you, when I got my nikah done, nikah के बाद I met one of my gynec, and मैं actually before rukhsati I wanted to see my gynec because I was very very passionate about children. Like I always wanted to have children because my mother had a disease, a condition where she had, although she's been the most wonderful mother, and this is, you look at me and you'll know what a wonderful woman there is behind me. So but उनका था थोड़ा उनकी तबीयत का मामला, तो उसमें मेरा दिल चाहता था कि उन्होंने उस हालत में भी जिस तरीके से हम 2 बहन भाइयों को नर्चर किया, मैं भी, मेरे भी बच्चे हो, मैं उस तरीके की परफेक्ट मदर पैम्परिंग दे पाऊं. So मैं गायनाइक के पास गई and the gynec absolutely said कि उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट कराए, they ran a few tests on me and they were like आपको IVF कराना पड़ेगा कि आपका तो बच्चा हो ही नहीं सकता. Really? And they were like कि आपको इतना खर्चा आएगा, वो आएगा, ये आएगा, and you should start saving because you'll need that. You must be so scared at that time, no? So I thought and I was like कि नहीं, चलो मैं अडॉप्ट कर लूंगी, कोई मसला नहीं, अगर नहीं हुआ मतलब अल्लाह की मर्जी है ये करके सारी चीजें. And I was very positive about it and I was like नहीं, मैं IVF वगैरह मैं नहीं कराऊंगी. मैं मतलब I'm not discouraging anyone, but I didn't want it to. Your choice. I didn't want it to do it. My husband also, he said हम दोनों साथ हैं, हम किसी बच्चे को घर दे सकते हैं, अच्छा घर दे सकते हैं, rather than going through all of it, उसमें वो पैसे खर्च होंगे, तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं. हम थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन, हमारी शादी भी TCF को प्लेज थी. वी वर द फर्स्ट कपल आई थिंक जिसने TCF में मतलब the proceeds that came from our wedding went to educate children. And it was after my mother. So हम लोग इस तरीके के हम सोच हमारी ऐसी थी. तो मेरे ख्याल से my mother, because she had died at that time very recently, she did her magic. And in 15 minutes I was expecting my first. 15 days I was expecting my first. And then after my first, after 9.5 months after my first, I was expecting my second. Wow. Yeah, so 40 I had my first. And then just right when I was getting on my 41 is when I was. I think इसका एक और रीजन पता है कि आप लोग इतना पॉजिटिव रहे इस चीज को लेके, और एक वो डिप्रेशन में नहीं गए, आप लोगों की थॉट पॉजिटिव थी कि चलो ये नहीं वर्क किया तो हम we were stressed about it. You were not stressed about it. अल्लाह ताला ने खुद ब खुद देखिए at the age of 40 and 41 it's a big deal to conceive and give birth. Yeah. And look at you. Yeah, and my God, you look so fit, mashallah. And that also, alhamdulillah. Like as I told you, हम जब बात करते हैं, you look like late 20s. I am loving this interview. I'll have a second phase if you want. I'm very happy. Who can look at Sarah and say that you are a mom of two? No, alhamdulillah, and I like to look like a mom of two, thoda sa, and I take pride in that. But message for, and the question that you asked me, and message for the audience who's listening. देखिए, इसका age and time, there's always a right time, and it's always a choice. देखिए, बच्चा पैदा करना ना बड़ी आसान काम होता है, कुछ लोगों कुछ लोगों के लिए ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, मगर बच्चा पालना जो होता है ना, वो है जिसपे आप तरबियत जो है. तो आप बच्चा बिल्कुल, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अपनी कजिन्स को भी बोलती हूँ, दे वेरी यंग, काम कर रही है, दे हैव गॉटन मैरिड, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो बेटा, जब तक यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, नॉट योर हस्बैंड, यू जब तक यू नॉट फाइनेंशियली स्टेबल कि अगर बुरे वक्तों में आपको अपना बच्चा परवान चढ़ाना पड़े, उससे पहले बच्चा पैदा नहीं करो. और अगर कर रहे हो तो इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप एक जान को एक अच्छी जिंदगी दे सके, और फिर उन चॉइसेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए. एग्जैक्टली सारा, इतनी अच्छी बात आपने की, और ये इतना अच्छा मैसेज है दैट इन दिस एरा, इन दिस एज, अ गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ, फाइनेंशियली स्टेबल इनफ दैट खुदा न खास्ता कोई मामलात हो जाते हैं तो आप अपने लिए अपना एक स्टैंड ले सके ना. बिल्कुल. और हर लड़की को इतना तो शऊर हो, इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है अपने लिए भी. देखिए, लड़का और लड़की, मैं मिडिल ईस्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, 11 साल रह के आई हूँ, ये सिर्फ हमारा नैरेटिव है. आदमी औरत में देखिए फर्क, आदमी हमेशा सुपीरियर है क्योंकि उसके अंदर फिजिकल एनर्जी औरत से ज्यादा है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन जो आप मतलब
सोसाइटीज चलाने वाली हमारे सामने तो रोल मॉडल्स हमारे इस्लाम में हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, ऐसी रोल मॉडल्स हैं। अगर आप रोल मॉडल्स उठाने पे आए तो यहाँ पे ये है रोल मॉडल्स। और डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर, डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर they were warriors over there. There was झांसी की रानी, there were so many. येसो भाई, this movie that has come out right now, there are many people that you can talk about who were Mumtaz Mahal was after Mumtaz. She had that kind of emotional power to on a king. Women have given that power. तभी तो बच्चा पैदा करने का जो अल्लाह ताला ने ये निजाम रखा है औरत को दिया, क्योंकि वो बर्दाश्त कर सकती है। हर तरीके की ताकत है ना, हर तरीके की ताकत है। तो आपको अपने काउंटर पार्ट यानी अपने शौहर की ताकत बनना चाहिए, उनकी कमजोरी ना बने। शौहर को औरत की कमजोरी नहीं, औरत की ताकत होना चाहिए। और आपका यूनिट जो है ना, द वर्ड इज द यूनिट, आपकी टीम है ना, दैट शुड बी अ पावर टीम। वो चाहिए आपको, होना चाहिए, वो चाहिए, एक दूसरे का पावर हाउस होना चाहिए, वो चाहिए आपको। अच्छा सारा, अब जो है वो बच्चे हो गए माशाल्लाह, छोटे हैं, बहुत क्यूट से हैं, ठीक है। नाउ आपने अपना करियर नहीं छोड़ा, क्योंकि जाहिर है यू हैव बिल्ड योरसेल्फ इतने साल तक, तो एक आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि यार आई हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। शादी के बाद भी आप काम कर रही हैं, सही है, बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या करती हैं, साथ लेके जाती हैं वर्क प्लेस पे? वर्क प्लेसेस इतनी अडेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल हैं? सो देखिए, हम दुबई में तो ये नॉर्मल है। आपका बच्चा पैदा होता है, डे केयर्स उन्हीं बिल्डिंग्स में होते हैं। यूजुअली तो लड़कियां ऐसी जगह काम भी कर लेती हैं जिसके बराबर में ही उनका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो, कैमरास है वहाँ पे, देयर आर मेड्स, देयर आर फैमिली मेंबर्स जो वो अपने साथ ऑब्वियसली उनके होते हैं। अगर हेल्प के लिए किसी की मदर है, अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर नहीं है, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी बहुत ओल्ड है, मेरी सास हैज अ मेडिकल इशू, बट शी स्टिल, माय नंदन सास आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव दैट अगर मुझे कभी छोड़ के जाना होता है तो दे लुक आफ्टर माय किड्स एंड एक्चुअली देयर ओन किड्स, बिकॉज वो उन्हीं के बच्चे हैं सब, हम लोग सारे। तो और माय हस्बैंड इज एंड देन योर पार्टनर, जो देखिए बच्चे जो है ना, माँ बाप से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। मेरे अब्बा हैं, मेरे बच्चों को देखते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी नानी भी देख लेती है। मेरी आई हैव अ वंडरफुल भाभी and 2 bhabis, wonderful bhabis who look after my kids when needed. जो भी काम करी है, घर से काम करी। मेरी भाभी के भी 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं उसकी, वो कभी 4 लड़कियां घर में होती हैं, वो अपना काम कर रही होती है। शी इज वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी और वो कर रही है। मगर पॉइंट ये है कि देखिए, काम छोड़ना जो है ना इस डे एंड एज में, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इशू ऑफ कंट्रीज, नॉट जस्ट सोसाइटी। अगर आप इकोनॉमिकली देखें इतने स्टेबल हैं कि आपका हाउस होल्ड चल सकता है आपके काम करे बगैर, और अगर आप ये लेवरेज ले सकते हैं कि आप अपने करियर में 10 साल बाद वापस जाएंगे और वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप जरूर ब्रेक लें। मतलब आप मुझे चॉइस दें, मैं तो अपने बच्चों के साथ बैठ के जो है ना वक्त गुजारना चाहूंगी, अपनी पॉडकास्ट करूंगी, अपने सोशल शोज करूंगी। या आई वुड वांट टू डू दैट। आई कांट लेट माय किड्स नॉट हैव दैट अटेंशन, बट there is a cost of living that I have to give my kids, and I have to save for them because they have to go for their education, and they're running with the global trends, and everything's gotten very expensive, and then my husband is working very very hard for it, and I want to be his strength towards it, and this is our choice for our family and our team. And जब शुरू में मैंने क्योंकि बाहर कहीं मुल्कों में इस तरह नहीं होता है ना, choices है, I've been blessed with very nice employers, मेरे बच्चे दोनों, मैं एक टीवी चैनल में काम करती थी, my boss absolute sweetheart, absolute friend, absolute sweetheart. Now he's my ex-boss, but he's been a brother figure or a whatever figure that you can, I mean he's been the strength behind me, support किया आपको उसने, मतलब मेरे बॉस ने ना समझो कि मुझे यूं करके विंग्स दी हैं, and these we need men like these, and I'm forever grateful. And he was younger than me, but he did, and he never for a second made me feel कि देखो तुम्हारी शादी हो रही है या तुम बच्चे पैदा कर रही हो, this is going to be limitation for you. He never did that. अच्छी बात है. He never did that. He said, in fact, तुम ये कर रही हो तो ये this has to add to your strength and your multitasking and everything. Empower you more. और अगर ऐसे लोग आसपास हो ना जो आपको ये फील करवाएं that this is going to empower you more, तो आप
बहुत चीजें और फील क्या कराएं, प्रैक्टिकली कराएं। मतलब he would put me up on challenges where he knew कि ये जो है she is going to falter on it, but what he wanted was कि नहीं, I wanted to feel more powerful, and I knew it because he was my boss. I knew his DNA, how he worked with me, a professional DNA that we shared, and I knew that he was setting me up for this because he wanted my power back. True. So once you understand that part, देखो your manager or your male figures in your family, देखो बाप भाई शौहर एक मैनेजर ही होते हैं ना, वो एक पर्सनल मैनेजर है, बॉस आपका प्रोफेशनल मैनेजर है। वो क्या चाहते हैं, मैनेजर्स चाहते हैं अपनी टीम को सबसे ऊपर देखना। These are what managers are. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो मैनेजर नहीं हो सकते। सही है। तो आपको भी एज हम लोग बड़ा क्रिप करते हैं ना, जब काम कर रहे होते हैं बॉसेस को बुरा भला कहते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसी है वैसी है। आपने समझना है कि वो क्यों, वो दूसरा रख ले, वो आप पे इतना वक्त दे रहा है, वो आपको कहीं पहुंचाना चाहता है। अगर वो आप वहां नहीं पहुंच रहे तो या आपकी बदकिस्मती है कि आप he is trying to make it work for you and ये नहीं। So मेरे employees have been very very supportive that way। हाँ, एक वर्क प्लेस पे मेरे लिए बच्चों को ले जाना मुश्किल होता था बिकॉज एरिया जो था उसमें देयर वर अ फ्यू सोशल प्रॉब्लम्स जिसमें वी वुड बी वेरी केयरफुल। अब मेरे जो नए एम्प्लॉयज हैं, again very wonderful people. Mashallah, you have been very lucky. I have been very lucky. Alhamdulillah, touch wood, and please no bad vibes, only good vibes. No evil eyes off. And when I was interviewing with my new employees also, a young dude, powerful people, a woman who's a girl woman boss who's fairly, I mean मैं कहती हूँ कि the next 10 years you look up to her, आपको पता चलेगा कि she's going to probably change the media dynamics, but she held that point to my strength and she said, you bring your children and do your work, and that I don't see that as a limitation. And I take my kids to work, and my workplace is gracious कि मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा प्ले पैन रखा हुआ है जिसमें मेरे बच्चे सो जाते हैं स्कूल से आने के बाद, और मैं अपने काम उसी तरीके से रखती हूँ। I've got my conference room where I do my meetings, and even मेरे कमरे में जब जरूरत होती है, and office decorum भी। और इससे फायदा ये भी हो रहा है, my children are also getting disciplined. True. And they're getting into a routine. My work is not affected, my career is not affected. कभी जल्दी निकलना होता है तो my husband takes my kids, he does the second shift of the team. The duties are fixed. Yeah, so we both take turns, and his employers are also very very supportive with अगर उसको कभी किसी टाइम पे निकलना है बच्चों के लिए। So career आप इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको जहाँ अपने औलाद को पहुंचाना है ना, आपको खुद कुछ बनना पड़ेगा। तो you have to set a role model, you have to set resources, you have to set financial background. All of that comes out from a career. If you can set up your business at some point in time, do that. But if you are working, make that work too. True, and this kind of support we expect from workplaces. अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नहीं, but there are workplaces where they have daycares. National Food में daycare है। मैं कल I think Khadi has it, Daraz has it, Daraz and Architect में भी there is a place। तो वहाँ पे ना mothers बहुत secure feel करती है कि बच्चे करीबी हैं, तो ब्रेक टाइम हुआ या टाइम निकाल के चले गए, देख लिया, and there are people who are taking care of them, so they know that they are being taken care of while they are busy in their work। तो वो मेंटल आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि घर पे क्या कर रहे होंगे बच्चे, करीब हैं, जाके अपनी नजरों, माओ कहती होती है ना, नजरों के सामने रहें। मैं ऑर्गेनाइजेशंस को ना I have this kind of chat with organizations, so मैं बहुत encourage करती हूँ कि देखिए आपने एक 20 साल एक्सपीरियंस औरत को बुलाया और जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके बच्चे हैं आपने उसका पे कट कर दिया, आपने उसको जगह नहीं दी, आपने उसको हायर नहीं किया, इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, टेम्पररी तौर पे नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ अल्लाह है, बिकॉज अल्लाह ताला ने उसको एक जनरेशन दी है, तो उसका कोई ना कोई तो रिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे रिसोर्स से हाथ धो देंगे। सही है, औरत को आप जब उसकी लिमिटेशंस के साथ अपनाते हैं ना, स्पेशली साउथ एशियन औरत को, तो वो आपको 20% अगर उस अपना आउटपुट दे रही है ना, वो आपको 120% अपना आउटपुट देगी। और आपको पता है कि जो औरत है ना, ऐसा कहते हैं और ऐसा सच भी है कि आफ्टर यू बिकम अ मॉम यू बिकम मोर मल्टीटास्कर, यू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो वो जो और भी मैं समझती हूँ 100% ज्यादा आप इफेक्टिव यू स्टार्ट फंक्शनिंग। अब देखो मेरा रात, मतलब मेरा
8 आवर्स स्लीपिंग स्केड्यूल मुझे चाहिए, लेकिन 3 बजे मैं कभी जिंदगी में, इवन अपने पेपर्स के लिए, मैंने अपनी डिग्री की एक पेपर, मैं बीकॉम कर रही थी शौक में, डबल ग्रेजुएट, सो मैंने एक पेपर छोड़ा था इसलिए कि मैं सुबह नहीं उठ सकती थी भाई। एंड 3 बजे अगर मेरी बेटी रोती है दूध की बोतल के लिए, तो इट टेक्स मी हाफ अ सेकेंड टू गेट अप एंड मेक विदाउट वाइंडिंग। ये अल्लाह आपके अंदर चीज जाता है, नेचर डालता है, दैट्स हाउ वी इवॉल्व। सो ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा नहीं, और लेकिन women, then from the organization's flip side, there are a lot of women who play the women card also then, you know, ये गलत ये आप जो करते हैं ना, क्यों, देखो कोई भी अगर इस बात से कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कतरा रही है तो उसका भी कोई एक्सपीरियंस होगा, मैं तो दोनों साइड पे बैठ के देखूंगी फ्रॉम द पैराडाइम। सो औरतें क्या करती हैं, वो विमेन कार्ड यूज करती थी, मेरा बच्चा घर पे रो रहा है, मुझे छुट्टी करनी है, मेरे बच्चे को बुखार है, आप वर्क फ्रॉम होम कर लें। मैंने भी लिया है 4 दिन पहले, मैं प्रोबेशन पे हूँ, मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम लिया, मैंने अपने एचआर को बताया कि देखिए मेरी छुट्टी नहीं है, आप रखें, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मैं मीटिंग्स पे गई हूँ, मेरी बेटी बीमार थी, मैंने मैनेज किया है। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रही है, भी डेडिकेशन आपने शो करनी है। तो क्योंकि आप उनकी प्रोफेशनल फैमिली है और वो आपको अपना रहे हैं। सो जैसे आपकी पर्सनल फैमिली है, प्रोफेशनल फैमिली भी उतनी ही प्रायोरिटी पे है आपके लिए। सो यू हैव टू वॉच दैट, राइट। वर्क प्लेस का जो सपोर्ट सिस्टम है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी देते हैं। सो आपकी जर्नी सुन के ना मुझे एक चीज़ बहुत ये रियलाइजेशन होती है कि कभी भी किसी के प्रेशर में आके आप कोई डिसीजन ना लें। अगर आप एक लड़की हैं और आप पे शादी का प्रेशर है, अपनी चॉइसेस को थोड़ा प्रायोरिटाइज तो करें, अपने आप को इतना तो लेवरेज दें कि चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल, डर निकालें। हाँ, डर निकालें। डर निकालें। देखिए चीज़ों को ना बैलेंस्ड अप्रोच में, जिंदगी में मियाना रवि जो होती है ना, easier said than done, मतलब ये बातें मैं आज कह रही हूँ, शायद मैंने ये चीज़ें लिव अप नहीं की हूँ, लेकिन इन चीज़ों को मैंने सीखा है कि हाँ दे मेक सेंस, यू नो, जो पहले हम पढ़ते थे चीज़ों को कि बैलेंस्ड अप्रोच, मियाना रवि, एक बीच की अप्रोच, हर चीज़ की एक बैलेंस्ड अप्रोच निकालने से चीज़ें आसान होती हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। आपको जो सबसे प्राइमरीली जानने की ज़रूरत है ना, देखिए वो अपने आप को व्हाट यू वांट इन लाइफ, ठीक है, व्हाट यू वांट, अगर ये आपका क्लियर है ना, व्हाई, द 5 W's दैट यू हैव, व्हेन यू क्लियर ऑन इट, हर चीज़ आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा सारा, एक चीज़ जो शादी से पहले वाली सारा में चेंज हुई शादी के बाद वाली सारा में, और वो चीज़ इनफैक्ट शादी के बाद भी मदरहुड के बाद, और वो आपने अपनी ज़िंदगी को में एक्सेप्ट किया एंड यू फील लाइक कि यार ये अच्छा चेंज। डिपेंडेबिलिटी, मैं किसी पे डिपेंड करना पसंद नहीं करती थी। ये देखे ईगो वाली आप देख ली ना मेरा, ये दिस इज बिफोर। नहीं, ऐसा होता है जब आप एक बहुत अरसे तक अकेले हो, अकेले एज इन के खुद काम कर रहे हो, हर चीज खुद कर रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो डिपेंड करना भी ना बहुत डरते हो कि नहीं मुझे, नहीं आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। तो वो देखिए आपको किसी पे, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही थी, TTYT के नाम से वो होता था, स्कूल ऑफ लीडरशिप कराते थे, तो उसमें एक एक्सरसाइज होती थी जो हमें कराई जाती थी कि आप जो है ना यूं अपनी बॉडी को पकड़ के, आपको एक पार्टनर साइन किया जाता था एंड यू हैड टू लीव योरसेल्फ एंड यू हैड टू जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर टू गेट यू एंड फॉल। जिंदगी में डिपेंड करना चाहिए, किसी का साथ होना चाहिए। हर वक्त आप एक रिजिडिटी में अपने आप के अंदर अपनी बाउंड्रीज बना के अपने आप को बहुत सख्त कर लेते हैं। ये स्पेशल मैसेज मैं मर्दों के लिए दे रही हूँ। देखिए औरतें तो करती हैं ना, सब औरतों में होता है, लेकिन मर्द भी, मैं रोऊंगा नहीं, मैं वल्नरेबल नहीं होऊंगा, मैं किसी के सामने फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करूंगा, मैं किसी से दोस्ती नहीं, मतलब अपने दिल का हाल नहीं बताऊंगा, मैं यूं रहूंगा, आई एम यूं करके जो है वो मतलब चलता रहेगा, हाँ यूं करके, है ना। तो उस पे क्या होता है, जो जब आप जिंदगी को इस तरीके से देखते हैं ना, तो जिंदगी गर्दन में दर्द हो जाता है। दर्द भी वो सरवाइव करता है जो थोड़ा झुक जाता है। जिंदगी की तो कट जाओगे, जिंदगी की गर्दन में दर्द हो जाता है, सही है। तो ये चीज, और किसको दर्द होता है, जिसकी गर्दन होती।
तो सामने किसी को फर्क नहीं पड़ा बॉस, सामने किसी को फर्क नहीं पड़ा. So कभी कभी it's good to hug someone. It's good to get into that and let it out. Let it out. Trust somebody with, you know, yourself. I trust my husband, my father, my brother, the women figures in my life, my friends, even my daughters at some point in time when I'm getting very vulnerable. I'm like, मैं अपनी बेटी को बोल देती हूँ, Shaul, Mama is not feeling okay. Can you give me a hug? So sweet. Or Meru, I'm not having a good day. Can you smile for me? Can you give me a kishy? So these are very small gestures, but still. And gestures, but it will give you that power that you need, that fuel and that comfort. That comfort. Emotional also. stability is very important in life to be stable at any level. At any level, and be kind. Be kind. Yes. Start with being kind to yourself. Right. So one thing that you adapted is flexibility. And you to be depend on others, right? And to be kind at any situation. Right. Any situation. Being kind to your own self. So guys, we were in conversation with Sara Suhail Khan and it was such a lovely conversation. I really wish that इस conversation से आपको भी वो चीज़ें जो मेरे take away इस conversation से यही है that be dependable, be flexible, don't stress out yourself so much. And to society, I just want to say that please give the girls that leverage to explore themselves. उन पे सिर्फ शादी का pressure ना डालें just to make babies. They are so talented. हमारी बच्चियाँ बड़ी talented हैं. उन्हें ज़रा खुद को भी explore करने दें. So I will catch you up in another episode at Catch Up with Aisha. Till then अपना बहुत ख्याल रखें और